which you will get, I get shaken up when I even think of them, of what happens in these top, we call them top education institutions. But you know what is happening today because of this training which we are giving them. पता है आपको हमारे इंस्टीट्यूशन में अब क्या स्थिति आ गई है, 30% लोग आते हैं क्लास में, 20% कई बार, हाँ, और पता है क्या कर रहे हैं इन द रूम में, आप पता है हम IIT रुड़की की बात कर रहे हैं, IIT रुड़की में the dean of students was tearing his heart. He was saying for one week student doesn't come out of his room. Zomato आता है, टोमेटो आता है, मोमेटो आता है, कमरे में ही बैठे हुए. What is happening? You know, who's going to take responsibility of all this? You will be surprised at the education system. Please, this is really, I keep repeating, it's a pandemic all over the world. You go and see in Philadelphia, people lying on the streets with shooting themselves like that, whatever. You know, so the schools have to play a much bigger role, much bigger. They can't treat it lightly. It's not anymore, in my opinion, not anymore to say ki, we are bringing our culture to the schools. No. It'll have to be done on war footing and have to be done in a manner which is very carefully thought out and carefully executed. And schools like Nalanda, in my opinion, should take a leadership role in the whole area, not just to apne school mein to kar liya. What about the other schools? Why can't you all take a leadership role? Just like we have taken somewhat of a leadership role, why can't a school like Nalanda or like any other school, DAV, take a leadership role if you are convinced about what I am saying? But these gadgets is becoming really like a... It is a cancer. It's a pandemic, जी बता रहा हूँ. You won't believe. देखो, जब COVID हुआ था, you could see the pandemic. People were getting COVID and they were dying. Here, it's a very internal pandemic. पता नहीं चल रहा. आहिस्ते, the way things are happening, and it's a rapid growth. And not only that, there's also death. इतने लोग are committing suicide. Aren't the schools concerned about it? Yeah, I think here parents need to be... Parents को नहीं कर पाओगे. मैं बता रहा हूँ, the responsibility lies in schools. I'll tell you why. Parents today are busy in their own world. They have gone past that point where I can do anything with the parents, largely speaking. I'm not talking in particular cases, but parents today have gone past that thing. They'll give them whatever lollipop or whatever they want. So you can't do it at that level. But at the school level, we can still do something. I really feel this. And if a school principal and school teachers think about it carefully, why this is being done and execute it, that's why we are focusing on schools. Why do you think I'm here at Nalanda? I'm here because of the fact that we want to see that schools are sensitive to this. And if they are sensitive teachers, they have spoken so nicely, they are sensitive principal, but I want them to be even more sensitive and even more, do a little chintan manan. Really, I'm telling you, Sushma ji, don't think I'm saying it. I'm saying it in my heart and soul, I'm an educationist. Really, our whole family has been involved with education. And it pains me deeply to see what's happening in education today. In fact, out of that anguish, I took a cycle, an ordinary cycle of 7,000 rupees. Ordinary cycle. So I cycled alone from Srinagar. Just 2 years back I came here, from Srinagar to Kanyakumari and back to Guwahati and then to Delhi. So wonderful. Arey, kya baat hai. Now why should a person like Raja Miah not have got the Sangeet Natak Academy Award? I ask this question. Why should he have not got a Padma Award also? I ask this question. Really?
he what a he represents a whole gharana, Agra gharana, and what a great, lovely musician, and what a Now this is from the high. We do about 5,000 events in a year, in 1 year. ये 5,000 कार्यक्रम करते हैं करीब करीब. वहाँ right from Stanford University, IITs, triple IITs, NITs, right to government school Jhumri Talaiya. That is the spectrum. But 5,000 is peanuts. You know how many education institutions हमारे country में है? 20 lakhs. तो ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. तो हमें आप सबकी, each one of you, I am requesting to give a little bit of your time. I think that can really spread the message. So if you have any question to ask me, you just introduce yourself to everybody if you don't mind. सबके लिए introduce करो. हाय, प्रेमलता मौर्य, आवाज़ नेशनल न्यूज़. बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं. हम लोग ऐसे बहुत सारे केसेस में जाते हैं. बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट फ्रेंड हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है. प्रत्युषा बनर्जी को आप लोग सभी पहचानते थे, बालिका वधू में थी. जिस तरीके से सर वो लोग जब बॉम्बे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको करना था, आत्मविश्वास से भरे रहते, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ सर, और लोग छुपा रहे हैं, लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं ताकि कोई उनकी हेल्प कर सके. अगर वो सामने खुल के नहीं आएंगे तो हम हेल्प कैसे करेंगे. तो आसपास में जितने लोग हैं, मेरा कहना चाहे वो छोटे बच्चे हो या कोई भी हो, आप लोग खुलकर उनसे बात करिए. अगर कोई भी इस तरीके के लोग दिखते, क्योंकि सर अगर हम कहें आप डॉक्टर के पास जाओ तो उनको लगता है कि हम पागल हैं क्या, वहाँ पर हम लोग क्यों जाए. इस तरीके की चीज़ें सर होती हैं. ड्रग्स बहुत सारे लोग ले रहे हैं सर, सारी चीज़ें हो रही हैं, और हम लोग चाहते हैं लेकिन हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि वो खुल के सामने नहीं आते. तो सर जिस तरीके से लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग सब मिलके करिए, क्योंकि टीचर्स जो है सबसे बड़ा माध्यम है. बच्चों से लेकर जब तक वो उनका माइंड जो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, जो सारी चीज़ें हैं सर इसके लिए. थैंक यू. Will you come? Would you like to say? Please, thank you. अंजलि, और मैं इंडिया वॉइस चैनल से हूँ. थैंक यू. और आप में से कोई बोलेंगे? अच्छा, कोई बात नहीं, बोलना आ जाइए. अच्छा, ओके, वहीं से बोल दीजिए कहाँ से. ओके, कोई बात. यहाँ से जय गुप्ता, सिने आजकल. ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया. ओके, so then we'll solid. Correct. So what is the solution to that? Yeah, right. see. In most of things of death, what is required to do well in anything, as you rightly said, we have to increase our attention span. Agreed? Now, parents are very, very busy. They are going for the job early in the morning, come back late at night. Where does the responsibility come in? Schools. I'll tell you, I'll give you an example. There was this, I went to IIT Kanpur, and there was this bright young boy who was there. Very bright eyes. And he was smiling. I said, come here. I said, how are you doing? He said, hey, छोड़ो उसके बाद में. Sabyasachi, थोड़ा बैठो. I asked him, how are you doing? Sir, I'm a topper. So I said, which coaching institute did you join to get into IIT? He said, sir, I didn't join any coaching institute. I didn't have the money. I said, which attempt is it of yours? So my first attempt, sir. So I said, how did you do this? He did like My school. So I said, which school was this? He talked of some government school, small government school. So I said, what was so special about your school? He said, sir, my principal. So I said, what was so special about your principal? He says the principal had made the motto of the school. The motto of the school was, Harek
बच्चे की एकाग्रता बढ़ाना. That was the motto of the school. Nothing else. No big mission statement. Just this was the motto. And I will say add to that, और उसकी धैर्यता बढ़ाना, increase the patience level. I said, how did they do it? So every morning the whole school had to do half an hour of yoga. So I said, that many schools do, what's so great about it? He said, no sir, not like how the other schools do it, where a PT instructor is sent for a 6-month crash course in yoga. He comes back and teaches, you do either PT or yoga. No. He said it was also not like what you see on TV. If you sit, आप एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखिए, दाएं की तरफ मुड़िए तो आपका नाक का दर्द चला जाएगा, बाएं की तरफ मुड़ोगे तो कान का दर्द चला जाएगा. No. He said I was concentrating on my monkey mind. My monkey mind was going to Shah Rukh Khan, to Amitabh Bachchan, to Britney Spears, to Taylor Swift, was brought in this much. I said, then what happened? Then he said, sir, when the school, each teacher in the school was instructed to look like that and see who's not looking into the eyes of the teacher. आप नहीं देख रहे मेरी आंख में. You are not concentrating like that. Then I said, then what happened? They said the most important thing was, at the end of the school, the whole school had to do 1 hour of Indian classical music. My attention, which was in this much, came like this, became like a laser beam. When I took my physics book or my maths book or my any book, I'd finish like this. What others would take many hours to do, I'd do it like this. Now, if a monkey is sitting on the tree and you tell the monkey to dance, there is no age group. At any age group, if he is a laggard, either if it is falls genetically in laggard group, then by birth he is a laggard. So no much fun in spending much time on that, because right from their birth till the death they will continue doing irresponsible things. So age group is on. And another most important thing is, as you have said, I will just try to put in other words, the most important subject to be studied by everybody and implemented is psychology. But unfortunately, in our nation, at least I see, it is one of the most ignored subjects. And we need, either it is classical music or our research or our profession or business or anything, this is fundamentally important for rational thinking. I'm sorry. No, that's fine. I agree with you. बताया ना, तो उसमें पूरी दुनिया भर में काम हो रहा है कि और म्यूजिक के लिए ना, जैसे स्कूल में बहुत सारा होता है कि हम म्यूजिशियन नहीं बना रहे, मैंने पहले भी बताया था. आप म्यूजिक जब सुनते हैं ना, तो आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं. तो आपको ये लोगों तक प्रमोट करना पड़ेगा कि खाली हम म्यूजिशियन को वहाँ म्यूजिक के लिए नहीं बुला रहे हैं. आप अगर साइंटिस्ट बनते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं. तो अभी पूरे दुनिया में जो प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की, उसमें म्यूजिक से उसको कम किया जा सकता है. ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हैं, यू कैन गूगल इट एंड बहुत सारे रिसर्च हैं. एक मीटिंग हमने इसलिए रखी थी ताकि हम बहुत से और लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ें, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, वो ऐसे बन जाए. ये है सर, स्टूडेंट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपने टीचर्स के साथ डिस्कस की, बहुत सारी चीज़ें उनको जोड़ने के लिए कहा. क्या क्या चीज़ें हैं जो डिप्रेशन या बच्चों को नई राह दिखा सकते हैं? हम लोग जो कर रहे हैं वो कोशिश ये है कि जो बच्चों की जो माइंड जो है, जो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, जैसे एक बंदर जैसे दौड़ रहा है उनका माइंड इधर उधर, उसको हम लोग काबू में लाने के लिए क्या कर सकते हैं. हम लोग अपने जो शास्त्रीय संगीत हुई, हमारी जो लोक कलाएँ हुई, हमारे जो योग और ध्यान का जो क्षेत्र है, उसको हम सारे ऐसी चीज़ों को बच्चों में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और जो कुछ भी करें, बेशक वो साइंटिस्ट बने
बेशक कोई जर्नलिस्ट बने, जो भी करना चाहें वो अच्छी तरह टॉप कर पाए, क्योंकि सबके लिए एकाग्रता की ज़रूरत है। सर, शास्त्रीय संगीत को जिस तरीके से आपने बताया है कि बहुत बड़ा एक मेडिसिन है लोगों के लिए, क्या है वो थोड़ा सा बताएं। शास्त्रीय संगीत, देखिए हमारा जो शास्त्रीय संगीत वो एक संगीत नहीं है, संगीत तो एक माध्यम है। किसके लिए माध्यम? पहला तो माध्यम ये है कि बिल्कुल मन को एकाग्र बनाने के लिए आपको बिल्कुल सा मतलब सा ऐसे हिलना नहीं है। तो वो अगर आप अच्छी तरह सीखोगे तो आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद और उसके कई पहलू हैं। उसका ये है कि हम उसको अपनी जो क्रिएटिविटी है अपनी मन की, उसको बढ़ा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा है, ये जैसे सीढ़ी है, हम चढ़ कर के जब हम पार करते हैं शास्त्रीय संगीत को तो हम मैं कहता हूँ हमेशा कि एक अल्फ़ा जोन में चले जाते हैं। अब उसको मैं कैसे उसका क्या अनुभव दे सकता हूँ, वो तो केवल आपको अनुभव करना पड़ेगा। सर, बहुत सारे डिप्रेशन से जिस तरीके से आपने बताया, लोग फांसी ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आपने एक एग्जाम्पल भी दिया कि लोग हफ्ते भर जो है रूम में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है, क्या मानते हैं सब कारण क्यों है और किस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं? ये जो है ना, क्या है, हमारी ये जो छोटी चीज़ है इसने हमारे मन को काबू कर लिया है। इसने हमारे बंदर मन को काबू कर लिया है। तो क्या है, जो भी छोटी चीज़ बंदर मन कहता है वो हम कर लेते हैं। देखिए क्या है, जो सबकी ज़िंदगी में पहले से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले हमेशा ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। जब लाइफ ऊपर जा रहा होता है सब खुश हैं, बट जब नीचे आता है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? जब नीचे आ रहा हो, पहले हम लोग जैसे हम स्टूडेंट थे तब ये चीज़ नहीं थी, ये सेल फोन। तो क्या होता था, हमें ये सिखाया गया था कि भाई कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आता है नीचे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जब सचमुच में ठीक हो जाता था फिर ऊपर आ जाता था। परंतु आज क्या है, ये सेल फोन कहता है और ये तुम्हारा बंदर मन कहता है, ए तुम तो डिप्रेस्ड हो। हाँ बंदर मन, मैं डिप्रेस्ड हूँ। तुम बहुत ही डिप्रेस्ड हो। हाँ बंदर मन, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ। तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना? हाँ मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ। तुम तो बिल्कुल गए गुजरे हो, ऐसे लगाओ खच से ख़त्म। कोई ये ना इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनने क्या कर दिया है कि हमारा रिस्पॉन्स इमीडिएट है, कोई रुकना नहीं है। जैसे बंदर मन ने कहा वैसे खट से कर दिया। तो जब तक ये बंदर मन पकड़ोगे नहीं तब तक ये मामला तो होगा ही, चलता ही जाएगा। डिप्रेशन एंग्जाइटी कोई नई चीज़ नहीं है, हर एक जनरेशन में हुई है। पर कैसे उसका रिस्पॉन्स क्या है वो बदल गया। मेरा रिस्पॉन्स और एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स, आज के रिस्पॉन्स में बहुत अंतर है। मैं कहूँगा जब मुझे डिप्रेस नहीं होता हूँ, मैं भी होता हूँ, मैं भी एंग्जाइटी का भी फील करता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक यंग पर्सन कहेगा, हे मुझे तो कुछ करना है, गोली लेनी है, मुझे कुछ साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, मुझे कुछ ये। सर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के यूथ के लिए? मैं खाली ये मैसेज दूंगा कि सारे पेरेंट्स, टीचर्स, ये पैंडमिक जो है, इमीडिएसी का पैंडमिक, उसके लिए कुछ करें। अगर बच्चों में थोड़ी सी धैर्यता आ जाए, थोड़ी सी एकाग्रता आ जाए, बस काफ़ी है। एकाग्रता और धैर्यता, ये दो चीज़ें हमें अपने बच्चों में लाना ही लाना है, तभी ये चीज़ कुछ आगे। ये ना अंदर एक माउंट एवरेस्ट है, जैसे बाहर माउंट एवरेस्ट है, वहाँ एक अंदर माउंट एवरेस्ट है। जब कोई बाहर के माउंट एवरेस्ट को चढ़ जाता है तब न्यूज़पेपर में आ जाता है, टीवी में आ जाता है, ऐसा हमारे सब्यसाची ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया। पर जब इनर माउंट एवरेस्ट कोई क्लाइम करता है किसी को पता ही नहीं चलता। और इनर माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना बहुत ही कठिन है, कई गुना कठिन ज़्यादा आउटर माउंट एवरेस्ट को कवर करने के लिए। और वो चीज़ें, उसका पहला जो बेस है एकाग्रता और धैर्यता, बस। हम और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं,
बड़ी बातें ही नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, ये मैसेज है, एकाग्रता और धैर्यता। सर मेरा एक सवाल है, एक इनके लिए सवाल है कि आज की डेट में सोशल मीडिया और जो माहौल का प्रेशर है, मीडिया का और सोशल प्रेशर है, उसकी वजह से उस दिशा में बच्चे सोच ही नहीं पाते हैं। वो प्रेशर उनको उस तरफ जाने नहीं देता है जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो उससे वो कैसे डील करें? हमने बताया ना स्कूल में क्या करना है। अगर हम हर स्कूल में सिंपल टेक्निक मैंने आपको बताया, 50 + 50 + 50 टेक्निक प्राणायाम का, लंबा चौड़ा सांस लो, पकड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, यहाँ एकाग्र अपना अपना ध्यान यहाँ लगाओ। उसके बाद 50 बार ध्यान नासिका से नाभि तक, नाभि से नासिका तक। उसके बाद 50 यहाँ ब्रेथ, यहाँ अपने मस्तिष्क के बीच में अपने इष्ट पे, बस ख़त्म। ये एक हर रोज़, इसमें खाली एक बात है कि करना है हर रोज़। एक दिन छूट गया तो 40 दिन पीछे, ये हम कम नई बात नहीं कर रहे। हर एक चीज़ गहराई में अगर करनी हो तो हर रोज़ करनी पड़ेगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपके बारे में हाँ, इधर आओ, कम हियर। नहीं चलेगा सर। भी हैं, इसने बहुत कुछ काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो आज के प्रोग्राम को लेकर हम ये कहना चाहेंगे, 2-3 चीज़ें थी। तो एक तो हमारा अभी उद्देश्य ये है कि मुंबई में हम आगे ऐसे कार्यक्रम स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करना चाहेंगे, और हमारे आदरणीय डॉक्टर सेठ के मार्गदर्शन में हम बहुत सारे ऐसे और कार्यक्रम करना चाहेंगे, और करने का हमने अभी प्लानिंग शुरू कर दिया है। तो हाँ, तो हमारे सपोर्टर्स हैं SBI पेमेंट्स, जो जिन्होंने SRF है, टर्नर मॉरिसन है, ALVL एंड तो ये हमारे जो नेशनल सपोर्टर्स हैं, इन्होंने हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है। और हम और भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, हम उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पॉसिबल किया कि हम और बच्चों तक इसको लेकर जाएं। तो हम चाहते हैं कि इंडिया, सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और इंडिया में जितने स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, उन सारे स्टूडेंट्स तक हम पहुंचा पाए, ये मैसेज पहुंचा पाए। और हमारी जो अलग अलग कला है, और जो हमारे क्लासिकल आर्ट्स है, योग है, मेडिटेशन है, और जितने भी मॉड्यूल्स हमने आज बताए, हमारा प्रयास यही रहेगा। आज हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े थे, तो आपने देखा कि कम से कम 30-40 कार्यकर्ता आए थे। तो उनके सपोर्ट के साथ और हमारे सीनियर कार्यकर्ता कल्याण बोस सर है यहाँ पे, जिन्होंने मुंबई चैप्टर की स्थापना बहुत पहले 30 वर्ष पहले से करते आ रहे। तो हम कोशिश ये रहेगी कि सारे कार्यकर्ता की मदद से पूरे स्टेट में सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचे। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, हमें कॉर्पोरेट्स की सपोर्ट चाहिए, हमें सरकार की मदद चाहिए, और हमें जैसे इस तरीके से एजुकेशनल संस्था है उनकी सपोर्ट चाहिए। जैसे आज हम यहाँ पे है, नालंदा स्कूल में आए हैं, तो उनका सहयोग रहा है, तो ये मुमकिन हो पाया है। और आप जैसे जो पत्रकार है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि ये जो हम ये इनिशिएटिव, ये मूवमेंट हम लेकर चल रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ताकि सिर्फ पढ़ाई तो होती चलती जाएगी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ क्या हम उनको ऐसा कुछ दें जो उन्हें लाइफ लॉन्ग तक उनके जीवन में आगे लेकर जाए। सर, अब तक कितने लोगों से जुड़ चुके हैं आप लोग, अगर मुंबई की हम बात करें? जी, मुंबई में हम हर साल 35-40 कार्यक्रम करते हैं, हर साल। सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में हम करीब 400-450 कार्यक्रम एवरी ईयर करते हैं। क्लोज टू 400 to 500 स्कूल्स में हम कार्यक्रम करते हैं। मुंबई में भी अभी हम 40 से 50 स्कूल और कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन 40-50 अच्छे से अच्छे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, IIT, NIT, बहुत सारे संस्थाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर सेठ ने अभी हाल ही में, कल ही IIT में उनका टॉक रहा है, शाम को पिल्लई कॉलेज में टॉक रहा है। उसके पहले परसों सर का मीटिंग था, SBI पेमेंट्स, फिर रोटरी के जो कार्यकर्ता, उनसे भी हमने मीटिंग किया। सर ने खास उनका मुंबई का
आने का उद्देश्य था कि यहाँ पे शहर में जितने भी शिक्षण संस्था है और जितने कार्यकर्ता जो अलग अलग हमारे शहर में है वो उनसे मिल पाए और उनके मार्गदर्शन में इसको हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाए सभी के सहयोग। मोटिव क्या है इस तरीके की जो आप लोग बता रहे ये हाँ। चल रहा है सालों से, ये आपका मोटिव क्या है इसे चलाने का? सर मोटिव? हाँ। जी सर। मोटिव तो बताया है, हमारा मोटिव बिल्कुल क्लियर कट है। ये नहीं कि शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए या फोक फॉर्म, हमारा ये मोटिव ये है कि जो चीज़ें हमारे शिक्षा प्रणाली में नहीं पहुंच रही हैं, क्या चीज़ें नहीं पहुंच रही, जो चीज़ें बहुत सूक्ष्म हैं वो नहीं पहुंच रही, जो चीज़ें बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं वो नहीं पहुंच रही, जो चीज़ें बहुत इंस्पायरिंग हैं वो नहीं पहुंच रही, जो बहुत चीज़ें बहुत मिस्टिकल है वो नहीं पहुंच रही। जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, जो हमारे योग हैं, उनमें ये चार चीज़ें हैं। मिस्टिसिज्म सबसे इम्पोर्टेंट, एब्स्ट्रैक्शन, सटल्टी और इंस्पिरेशन, ये चीज़ें हम लाना चाहते हैं। उससे हमारी जो एक अंदरूनी आँख है जिससे हम देख सकते हैं जो हम इन आँखों से नहीं देख पाते, वो चीज़ हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं सारे बच्चों। तो बहुत सारे जिस तरीके से आपने बताया स्कूल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, लेकिन आज प्रेशर इतना है जिस तरीके से पढ़ाई को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर बच्चे पूरा उसमें ही इतने व्यस्त होते हैं कि बाकी एक्टिविटीज़ करने का उनको समय नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है? मैंने अभी बताया था एक लड़का कितना अच्छी तरह कर रहा था। देखो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं, हे तुम ये भी पढ़ो, कंप्यूटर्स भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को भेज रहे हैं युद्ध में, बैटलफील्ड में ब्लंट सोर्ड के साथ। हमारे गुरुकुल में क्या होता था, पहले क्या सिखाते थे, अपना सोर्ड, मन के सोर्ड को शार्पन करो, उसके बाद आराम से जाओ फील्ड में, खच 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 करके वापस आ जाओ। हम लोग को समय नहीं दे रहे बच्चों को कि वो अपना मन के सोर्ड को शार्पन करें। वो चीज़ हम स्पीक मेकिंग की कोशिश में है। हमारा शास्त्रीय संगीत, में फिर से कह रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत, योग, ये चीज़ें क्या हैं, ये इस मन को शार्पन करने के लिए। अगर आपका मन बहुत ही एकाग्र हो तो आप सोच लीजिए आपको कितना समय लगेगा एक मैथमेटिक्स की किताब पढ़ने में, बताइए। और अगर आपका मन नहीं लग रहा वहाँ, इधर उधर 2 घंटे आपके पास किताब पढ़ी है, हम जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किताब सामने है, मन तो जा रहा है उधर 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 उधर। क्या करेगा बच्चा? हाँ, 3 घंटे 5 घंटे खड़ा हुआ है, बट अगर हमने उसके मन को शार्पन कर दिया, उसने 15 मिनट आधे घंटे में वही कर लिया जो 5 घंटे वो लोग कर रहे हैं, है ना भाई। तो ये सब कहने की बात है कि लोग बच्चे बहुत बिजी हैं, बच्चे ये नहीं, क्या मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ टाइम जो वो स्पेंड कर रहे हैं पढ़ने में, वो बहुत ही लो क्वालिटी हो गया। हमें उस क्वालिटी को बढ़ाना है। कैसे? मन को एकाग्र बनाना। थैंक यू। चलो, शुक्रिया। अच्छा लगा इस सेमिनार में आके, और म्यूजिक के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई यहाँ पर, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है और कई सालों से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कामयाब काम हो रहा है। जो हमारी धरोहर है और हमारे देश की जो पहचान है, उस पहचान को, जो सही पहचान है, वो उनको हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ा काम है। मैं क्योंकि मैं संगीतकार हूँ, इसलिए मैं संगीत की बात करूँगा। वैसे तमाम बहुत सी चीज़ें, योगा है और ये तमाम हमारे हिंदुस्तान की जो ख़ास बातें हैं वो बच्चे सीखें। ये एक संस्था जो स्पीक मेक है बहुत बड़ा काम कर रही है कि लोगों के दिमागों में इस बात को बिठा रही है
कि हमारा जो धरोहर है उसको हम लोग किस तरह से रिवाइव करें और बच्चे पहचानें इस बात को कि भाई ये क्या चीज़ है हमारी। संगीत के बारे में भी ऐसा ही है कि संगीत बच्चों को जब तक हम नहीं बताएंगे और हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो बच्चों को समझ में कुछ नहीं आएगा। तो हमारा ये ज़रूरी है कि हम ख़ास तौर से शास्त्रीय संगीत जो हमारे देश का एक बहुत ही अहम चीज़ है उसको हम बच्चों को सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को बताएं कि भाई ये एक हमारे देश की धरोहर है। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, क्या बोल मेरा नाम है कल्याण बोस। मैं स्पिकमके से जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिन से। 1982 में मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र था उस समय मैं एक स्पिकमके का प्रोग्राम अटेंड किया। फिर मुझे लगा कि प्रोग्राम अटेंड करने के बाद लगा कि हमारे जो धरोहर है, हमारे जो शास्त्रीय संगीत है, कला है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ये पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। तो उस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए उस ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए स्पिकमके का शुरुआत हुई थी। अभी तो खैर वो उससे बहुत आगे बढ़ गई है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है स्पिकमके में कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, एक अच्छा आदमी बने। और जो हमारे डॉक्टर सेठ हमेशा बोलते हैं कि एक थिंकिंग पर्सन, सोच होनी चाहिए, उसी से सब कुछ होता है। और अच्छा बनने के लिए, एक अच्छा आदमी और इंसान बनने के लिए सोच की बहुत ज़रूरत है और उसी का प्रयास चल रहा है। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैं स्पिकमके की तरफ से सरिता नंदे शुभम। मैं नालंदा पब्लिक स्कूल में टीचर भी हूँ और यहाँ पे स्पिकमके का आज का जो इवेंट हो रहा है उसका आयोजन करने के पीछे मेरी भी थोड़ी सी मदद हुई है। और हम नालंदा पब्लिक स्कूल जो मुलुंड में है वो स्पिकमके का नोडल सेंटर है और हम 2012 से अब तक हर साल स्पिकमके मनाते हैं। एक फेस्टिवल की तरह होता है और मैं चाहती हूँ कि और स्कूल इस मूवमेंट के लिए जुड़े और हमारे लिए स्पिकमके की तरफ से हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़े। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हर शनिचर को 4 से 5 बजे के लिए हम यहाँ पे मिलते हैं। हम इसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, जुड़े और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में स्पिकमके एक इंस्टीट्यूशन, हेरिटेज क्लब फॉर्म हो। धन्यवाद। ठीक है, सक्सेस था। बढ़िया था। अरे मैं कम टाइम में